Let us continue further. We understood two types of problems on process costing. Type 1 was basically problems where there was no closing work in progress. There was no WIP basically. Type 2 was the problems where there was a work in progress. In type number 2, we had three subtypes being created. In the first subtype, I said we are going to have opening as well as, we'll have only closing WIP. Then the second type 2B was opening as well as closing WIP. And type 3 will be opening as well as closing WIP, but account will be of process number 2 and subsequent processes. Yesterday we did one sum on type 2B. We may practice few more if the time permits today. So basically entire process costing chapter is going to be as under. If I look at the process costing, it's what? Type 1. 1 is what? No WIP. फिर क्या सीखा बच्चों हमने इसमें? Treatment of normal loss, abnormal loss and abnormal gain. उतना ही सीखा हमने. Then we talked about type number 2. Type 2 में क्या होगा बच्चों? WIP will be there. But 2 के वापस कितने बच्चे किए हमने? 2A. Opening WIP will not be there. But there is a closing WIP. 2B will have opening WIP and closing WIP, but it is other than process, other than नहीं, this is process 1 only. ठीक है? This is what we did yesterday. Am I right? Now I'm going to talk about type 3 also, but before I go to type 3 we have to talk about type 2C. So except process 1 accounts will have. So and then type 3 we have to talk about inter process profit. I hope you recollect that. These are the three types that we are going to talk about. Now what difference does it really make if it is an account other than the process 1? Process 1 basically does not get any material which is received from previous process because there is no predecessor to process 1. Process 1 के पीछे कोई है क्या? उसका मालिक? कोई नहीं है. एक ही है नहीं, कोई नहीं है. You don't have anyone behind process 1. Am I right? So, process 1 typically, in order to solve, you did not have two categories of materials. But process 2 and the subsequent processes, you will have two categories of materials. What are the two categories of materials that you are going to have? Material that you received from previous process plus material that is introduced additionally during that particular process. So we have two types of processes or two types of material. Material received from previous process plus material that is introduced additionally during the process. Are you clear with this? ठीक है. तो हमने ये समझ लिया. अब इसका पर्पस क्या है? Why are we distinguishing this material? Let us understand the concept. Give me a pen. No, not that type. That red वाला fellow. हाँ, ठीक.
Listen up. I am a pen manufacturer. But within the pen manufacturing process, there are multiple steps involved. आजा तन्मय इधर, कैमरा के अंदर आजा. So, रेंज में आजा. हाँ. He is process number 1. He handles process number 1. तेरा काम क्या है? रिफिल बनाना. इसने रिफिल बनाया, इसने बाहर से प्लास्टिक खरीद लिया, इंक जो था वो खरीद लिया, ऑल एलिमेंट्स ही बॉट. प्रोसेस बनाया. प्रोसेस बना के उसने क्या किया? रिफिल बना के दे दिया. दे रिफिल मुझे. आई एम हैंडलिंग प्रोसेस नंबर 2. इसका कॉस्ट उसने मुझे 3 रुपया लगा के दिया. मेरा काम क्या है? अरे तू रेंज में रहे. इस रिफिल को मुझे पैकेजिंग करना है. ये जो है ना, दिस इज एडिशनल मटेरियल. I want 2-3 more pens like this. Just get it. Just open it. Understand. I'll introduce concept perfectly. 2-3 more I said. You'll get it back. Don't bother. बस हाँ. You just give me refills. Understand the concept. एक बार concept दिमाग में गया ना, एक ही प्रॉब्लम मुझे आपको सिर्फ सॉल्व करवा के लेना पड़ेगा. Who is he? He's handling process number 1. उसका काम क्या है? रिफिल बनाओ. I can understand your excitement, but control. You have it. So, these are refills. Mr. Gupta, he has sent me 4 refills. Material A. मेरा काम क्या है? पैकिंग करना. So I put up the packing material. I hope now the same material. So I'm taking. Cover दे. Some brain. ये एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया. 4 रिफिल लाए थे, एक हो गया. मैंने इसको आगे ट्रांसफर किया अगले प्रोसेस को. लेट्स से दिस इज नेक्स्ट प्रोसेस. तो रेंज में आना बेटा. दूसरा वो भी फिनिश हो गया. उसको मैंने मटेरियल लगाया. ये भी मैंने प्रोसेस 3 को कैरी फॉरवर्ड किया. बेसिकली मेरा काम क्या है? रिफिल 3 रुपया पर यूनिट मुझे आया था. मैंने उसके ऊपर और मटेरियल लगाया और ये आगे पास ऑन किया. मैंने और मटेरियल ऐड किया 4 रुपए का, लेट से. तो मेरा काम 3 रुपए वहां से रिसीव करना है, 4 रुपए का मटेरियल ऐड करना है, 2 रुपए के वेजेस और ओवरहेड्स ऐड करना है. 3 + 4 7 + 2 9 रुपया से प्रोसेस 3 को ट्रांसफर करना है. हाँ ना? बट जो 4 रिफिल आई थी उसमें से 3 तो मैंने पूरी पेन के अंदर भर दी. 3 मैंने पूरी पेन के अंदर भर दी. 3 पेन मैंने आगे ट्रांसफर किए. एक रिफिल मेरे पास अभी भी प्रोसेस में बाकी है. उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो अब तक पूरा नहीं लगा हुआ है. पूरा नहीं लगा हुआ है. हाँ, करेक्ट. इसलिए तो WIP है ना. ये क्या है? क्लोजिंग WIP. अब ये क्लोजिंग WIP का जब वैल्यूएशन करना है तो मटेरियल A, मटेरियल B. अब
इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम 100% लेते हैं, बेसिकली बिकॉज 3 रुपया पे वो मटेरियल मुझे मिला था, है ना. I received this at the cost of ₹3. While valuing this, it should be 3 only. It should be 3. 3 रुपया is refill का cost. ₹4 is a packaging cost. 3 is what? Refill. 3 रुपए का रिफिल आया, 4 रुपए का ये पैकेजिंग का मटेरियल लगाना है, लेकिन पूरा मटेरियल अभी तक हमने लगाया नहीं है. हमने अब तक सिर्फ 80% मटेरियल लगाया हुआ है. वो जो 80% मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा ना, वो 80% विल बी फॉर मटेरियल बी. मटेरियल बी जो है पैकेजिंग मटेरियल, उस पैकेजिंग का टोटल कॉस्ट 4 रुपया है, लेकिन 4 रुपए में से 80% कॉस्ट जिसका है उतना ही मटेरियल मैंने लगा के रखा है, दैट इज 3.2. तो वाइल वैल्यूइंग दिस क्लोजिंग WIP, आई शुड टेक 3 rupees entirely as it is received, and I should take 80% of cost of packaging material. है ना? So out of the total refills that I have received, some refills are completely put up into the packaging box. उनका पैकेजिंग हो चुका है और आगे हमने भेज दिया है प्रोसेस 3 को. But there are certain refills which are received on which half of the material or 70% of the material or 80% of the material has been used. When an examiner says degree of completion of a material in process 2 or the subsequent processes thereafter is 80%, he is not talking about refill, he is talking about packaging material. Because if you take 80% for this also in valuation, 3 रुपए का 80% आ जाएगा और ये 4 रुपए का ये जो पूरा पैकेजिंग है वो 4 है, 4 का 80% आ जाएगा. Unnecessarily you will do under valuation of inventory. जो आपका WIP है उसका अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा. क्यों यार, ये जो है इसका कॉस्ट कितना है? 3 plus 80% of packaging cost. It is not 3 plus 4 into 80%. It is 3 into 100% plus 4 into 80%. Am I right? This was simple. Let me put up a complication in this. Give me refills. I received total 4 refills. From the process number 1. I am supposed to do some kind of cutting of these refills because all the refills are not in a same size as you can see. So I ask my workers to put them onto the cutting machine and level them across here, this side, and then put the cut here somewhere. कट करते टाइम पे वर्कर ने थोड़ा गड़बड़ किया, थोड़ा ऐसा कट कर दिया एक बैच को या एक लॉट को. क्या हो गया? कुछ refills, let's say I received 4,000 refills like this from process 1. Of that, 100 refills are normally lost in the cut process. 10 refills, 50 refills, loss कितना होता है वो relevant नहीं है, but some refills are lost in cutting, वो normal loss होगा. अगर नॉर्मल लॉस होता है, then only cost per unit of the refills will go up. क्यों? 4,000 refills I received at the rate of 3. Total cost was 12,000. Now that 12,000 will be spread over 3,900 refills. तो अगर नॉर्मल लॉस होता है तो ही मटेरियल ए का पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा. अदरवाइज प्रोसेस 2 या उनकी सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, उनका काम क्या है? पिछले प्रोसेस से जो मटेरियल आया उस मटेरियल में अपना खुद का मटेरियल जोड़ दो, खुद के वेजेस जोड़ दो, खुद के ओवरहेड जोड़ दो, और ये जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट पे अगले प्रोसेस को ट्रांसफर करो. दैट इज अ जॉब ऑफ द प्रोसेस नंबर 2 एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसेस. सो जॉब ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस इज एक्सट्रीमली सिंपल. प्लीज पैक इट अप्रोप्रिएटली एंड गिव इट टू द अप्रोप्रिएट स्टूडेंट. सो कॉन्सेप्ट क्या है? Process number 2 and the subsequent processes will have
some material coming from the previous process, याद क्या रखना है, refill, and they have some of their own material. What is that? Packaging. और ये पैकेजिंग करके आगे प्रोसेस पे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एट अ टाइम यू कुड हैव सम स्टॉक ऑफ रिफिल्स ऑन विच पार्ट पैकेजिंग हैज बीन डन. तो रिफिल के केस में नॉर्मली यू विल नॉट हैव, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग में WIP कुछ रिलेवेंट नहीं रहेगा. WIP जहां पर मटेरियल रहता है वहां पर ही ये प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करना है, मतलब WIP वैल्यूएशन करना है. देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज वेयर लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और अदर थिंग्स where WIP does exist. Sugar manufacturing का example दिया, WIP will always exist. Electronic goods manufacturing, WIP will exist. Car manufacturing, WIP will always exist. There will be WIP at any point of time. Car manufacturing में multiple processes है, standardized product है. There are multiple processes involved in the manufacturing of a car. So at any given date, imagine a car manufacturer could have some cars where body is put up. Painting is yet to be done. Some cars where, let's say, chassis is only there, body is yet to be put up. Like you could have different cars in different stages. So at that particular point of time, in a particular process, you will have some material coming from previous process plus some material added on its own. Let's take an example of paint shop. I don't know whether you have imagined the paint shop. मैं एक ही बार मैंने जिंदगी में हिम्मत किया था, उसके बाद मैं वापस कभी करूंगा नहीं. मर्सिडीज बेंज को टूर लेके गया था बच्चों का, कॉस्टिंग के बैचेस में. मैं बहुत सारे फैक्ट्रीज गए, मर्सिडीज बेंज, टाटा याजाकी, शुगर फैक्ट्री गए थे हम, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज लेके गया था. बच्चों ने बहुत परेशान किया मेरे को. सो मर्सिडीज बेंज का पेंट शॉप है. पेंट शॉप इज कंप्लीटली क्लोज्ड शॉप. उसका पूरा ग्लासेस रहता है, अंदर से रोबो रहता है, रोबो से पूरा पेंटिंग होता है गाड़ी का, तलेगांव में, चाकन में. सो गाड़ी कन्वेयर बेल्ट से अंदर आती है, समझ गया. 3 गाड़ियां ऐसे एक साथ रहती है, ठीक है. पूरा शॉप क्लोज्ड है. उनको गाड़ी जो आती है वो चैसिस रहता है, बॉडी रहता है, पूरा डोर वगैरह सब बंद रहता है. आपको क्या करना है, उसको पेंट करना है. रोबो इज गोइंग टू डू द पेंटिंग. बट पेंटिंग के लिए आपको पेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए. सो वो जो पेंट शॉप है, पेंट शॉप के लिए इनपुट क्या है, व्हीकल. विदाउट व्हाट, पेंट. उसका कॉस्ट आ गया लेट्स से 23 लाख रुपीस, आराम से 23 लाख रुपीस का गाड़ी आपको प्रीवियस प्रोसेस से कॉस्ट आ गया. आपको क्या करना है, उसको पेंट देना है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव सम सर्टेन नंबर ऑफ कार्स व्हिच आर देयर इन द पेंट शॉप. तो आपने गाड़ी का कुछ पेंटिंग किया है, आधा पेंटिंग होता. ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ यू रिसीव्ड लेट्स से 500 कार्स इन पेंट शॉप. आउट ऑफ 500, 480 कार्स हैव बीन पेंटेड, 20 cars are yet to be painted. तो वो शॉप में, पेंट शॉप में 20 cars is a closing WIP. There could be multiple paint shop 1, 2, 3, 4 like this. So there are 20 cars which are there in the paint shop on which paint is not put up as at the particular date. अब क्या करोगे, उस पेंट शॉप की जो WIP है उसका वैल्यूएशन जब करना है तो आपको क्या होगा. पेंट शॉप में 2 टाइप का मटेरियल है. व्हीकल इज अ मटेरियल फॉर द पेंट शॉप एंड द पेंट इज अनदर मटेरियल. डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 100% as far as vehicle is concerned. Degree of completion when I say 80% is for paint material. तो 20 गाड़ी में से कुछ गाड़ी को पेंट का लग चुका है, या पेंट का 1 हाथ लग चुका है, 2 हाथ और लगाना बाकी है. समझते हैं ना, पेंट एक इसमें नहीं होता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं. कोटिंग तो अलग अलग कोटिंग्स लगाने. तो लेट्स से देयर आर टोटल 7 कोट्स ऑन द मर्सिडीज. 7 to 8 कोट्स थे कुछ तो कलर के, 7 से 8 बार कलरिंग करते हो. सो 7 कोट है, उसमें से 4 लेयर लग चुके, 3 लेयर लगाने बाकी है. तो आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन यू विल से 4 out of 70 और इट मे नॉट बी 4 out of 7. कॉस्ट का प्रोपोर्शन कुछ अलग हो सकता है, फाइनल लेयर्स जो है वो कॉस्टली हो सकते हैं. तो व्हेन यू आर वैल्यूइंग अ WIP ऑफ अ पेंट शॉप, while valuing the car which is not yet painted completely, you will have the cost of the chassis of the car and you will have cost of paint. Paint ka degree of completion is 70%, 80%, 60%, 25%, whatever. But as far as car component is concerned, uska degree of completion क्या था, 100%. अब ये कार थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है आपके दिमाग में. आप रिफिल और पैकेज समझ गया. So if degree of completion is given to be less than 100%, it is obviously for material B, it is not for material A. ठीक है.
अब प्रॉब्लम FIFO या वेटेड एवरेज के हिसाब से सॉल्व करना है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच मेथड इज टू बी यूज्ड? It could be given in the question. If not given in the question, then ask a question in opening WIP whether the breakup of the cost of opening WIP is given. If the breakup of the opening WIP cost into material, labor, overheads is given, you can use weighted average cost. For weighted average cost method, you require breakup in cost. For FIFO, you require breakup in percentage of completion. अगर दोनों दिया हुआ है, ओपनिंग WIP, लाइक मैंने कल एग्जांपल दिया था, दिस एग्जांपल इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, 37,000 था ओपनिंग WIP टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये वाला. हाउ मच इज ओपनिंग WIP? लुक एट द एग्जांपल. 37,000 इज ओपनिंग WIP. उसका ब्रेकअप मैंने क्या दिया? 23 मटेरियल, 8,000 लेबर, 6,000 ओवरहेड, एंड आई गेव यू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो. आई गेव यू बोथ. The first one, if the breakup of opening WIP is given in terms of amount, if breakup is given in terms of what? Amount, then you can follow which method? Weighted average cost. And if the breakup is given in terms of degree of completion, you can follow FIFO. If both are given, you can follow any of the method that you want. Am I right? So now let us see a problem on type number 2C. 2B के ऊपर लगा तो मैं बाद में और प्रॉब्लम सॉल्व करके लेता हूं, बट 2C देखते हैं. टाइप नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 13, 1-3. इसमें आई थिंक वेटेड एवरेज यूज करना पॉसिबल ही नहीं है. Weighted average is not possible in both the sums 13 and 14. क्यों रे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन का ब्रेकअप दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट का ब्रेकअप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. वंस आई एक्सप्लेन FIFO, यू विल अंडरस्टैंड वेटेड एवरेज कॉस्ट. क्या होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट में? ओके, आई विल सॉल्व बाय वेटेड एवरेज आल्सो बाय ब्रेकिंग इट अप in some logical proportion. 13 number is what we are solving right now. Look at question number 13. From the following information for the month of June, prepare process cost account for process number 3. For process 3. For which month? June. So आपके पास जो opening WIP रहेगा वो May का closing रहेगा. Closing of May you'll have as a opening of what? June. Opening stock in process number 3, 500 units at the rate of 7,200. ब्रेकअप दिया है क्या 7,200 का कॉस्ट वाइज? कॉस्ट वाइज ब्रेकअप है क्या? नहीं है. ठीक है, बहुत बढ़िया. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2, 20,300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1,65,400. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 मतलब इट इज अ इनपुट टू प्रोसेस नंबर 3. ये जो रहेगा इनपुट, ये मटेरियल ए है बच्चों. वाई इज इट अ मटेरियल ए? इट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस. डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन द प्रोसेस नंबर 3. This is material B. Overheads, wages, units scrapped during the period. This is total loss. इसमें से कुछ नॉर्मल होगा, कुछ abnormal होगा, या abnormal gain भी हो सकता है, देखना पड़ेगा. Transfer to process number 4. This is what? Output. Closing stock 1800. हाँ ना. Degree of completion is opening something, material, labor, overhead, closing stock something. Do you understand that? There was a normal loss of 5% of gross production. What is gross production? Opening WIP plus units received minus closing WIP. ये इजहार करने का तरीका है. 5% of gross production is a normal loss. उसके आगे अगर कुछ हो गया तो abnormal होगा. Units scrapped were sold at the rate of 3 rupees each. Prepare process 3 account using FIFO method. बच्चों, steps will be the same as what we discussed yesterday. What are the steps? First, we'll prepare a statement of equivalent production. Under which method? First in, first out. उसमें material A का column अलग रहेगा, material B का column अलग रहेगा. Then cost per इक्विवेलेंट यूनिट का एक कॉलम रहेगा.
मतलब एक स्टेप रहेगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज, एंड फाइनली वील मेक अ process account. Are you clear with this? So can I start with the first item? What is the first item? Statement of equivalent production. Let us begin. Statement of equivalent production. Question number what? 13. Statement of equivalent production. Let's start. पहले क्या आएगा बच्चों इधर? Input quantity, particulars, आउटपुट क्वांटिटी. बाकी के कॉलम्स हम बाद में लिखेंगे, मतलब बाद में बनाएंगे. पहले इनपुट आउटपुट टैली कर लेते हैं. मटेरियल ए, मटेरियल बी, लेबर और ओवरहेड्स के लिए अलग है क्या, सेम है? सेम है. तो 3 कॉलम आएंगे बच्चों बेसिकली. मटेरियल ए के लिए एक कॉलम आएगा, मटेरियल बी के लिए आएगा, एंड लेबर एंड ओवरहेड्स. परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी एंड परसेंटेज क्वांटिटी. ये कौन सा क्वांटिटी रहेगा? इक्विवेलेंट क्वांटिटी रहेगा. एम आई राइट? पहले क्या नहीं टैली करना चाहिए आपने? मटेरियल ए बी सी या लेबर ओवरहेड को नहीं जाना है. पहले क्या करना है? इनपुट आउटपुट टैली करना है. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बोलो कितना है आपके पास? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 500 है ना? कॉस्ट मुझे चाहिए नहीं यार अभी. 500 रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस. 21,300 is what we received. Am I right? फिर नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कितना होता है बच्चों? 5%. 5% ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. ओपनिंग स्टॉक 500 प्लस रिसीव्ड 21,300 माइनस क्लोजिंग इज 1,800. इतना हमने बोला, इतना ग्रॉस प्रोडक्शन है. दिस इज ग्रॉस प्रोडक्शन बिफोर लॉस. कितना इतना ग्रॉस प्रोडक्शन? ओपनिंग प्लस रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग 20,000. उसका 5% बच्चों 1,000. उसका वर्किंग लिखना चाहिए आपने, कैसे आ गया वो ब्रैकेट में. 1,000 इज व्हाट? अरे बोलो बच्चों. नॉर्मल लॉस. लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 1100. इसका मतलब क्या है? abnormal loss is 100. Abnormal loss is 100 units. Good. If abnormal loss is 100 units, thereafter transfer to whom? अब बच्चों, अब आपको FIFO मेथड है. FIFO मेथड में यू हैव टू आंसर ट्रांसफर इज आउट ऑफ विच यूनिट्स. वेटेड एवरेज कॉस्ट में है वो सवाल था क्या? नहीं. सो ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग. ओपनिंग में से कितना ट्रांसफर होगा बच्चों? 500. टोटल ट्रांसफर कितना किया? 18,900 ना? 18,900 टोटल ट्रांसफर किया हुआ है. 18,900 ओपनिंग में से गया. न्यू यूनिट्स में से कितना गया? 18,400. 18,400 न्यू यूनिट्स में से चला गया. एम आई राइट? ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1800 है ना? इनपुट आउटपुट चेक करो, टैली हो रहा है क्या? 21,800. 21,800. हाँ, अगर अबनॉर्मल गेन आता है ना यहां पर तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, बट देयर इज नो अबनॉर्मल गेन इन दिस केस, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. कैन आई गो अहेड? अब हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखना है. नॉर्मल लॉस के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा कितना होता है? 0 होता है. 100 बोला कोई तो.
normal loss is going to be 0. Why? So that it is logically spread over other good units. For abnormal loss, degree of completion is as given in the question. If nothing given, we assume 100%. But in the question it is given, जो loss का degree of अच्छा नहीं दिया क्या? So degree of completion of abnormal loss is not given. So we assume we noted this at the end. तो कितना आएगा बच्चों? 100%. 100% मतलब 100. 100% मतलब क्वांटिटी 100 है इसलिए. डू यू गेट इट? 100%. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 4 आउट ऑफ ओपनिंग WIP. 500 जो है उसको डैश करना है, उसको बच्चा लेता है 100%. नॉर्मली यही पर बच्चे माती खाते हैं. इसको डैश लेना है. क्यों डैश लेना है बच्चों? जो 500 ओपनिंग WIP में से ट्रांसफर हुआ है, उसको जो कॉस्ट इंकर हुई है, करंट पीरियड में कुछ इंकर ही नहीं हुआ ना उसके ऊपर. मटेरियल सी कौन सा मेथड चल रहा है रे? FIFO. मैंने आपको कल उर्दू में कहा था, अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग इज इस पीरियड में कितना काम किया. ये जो 500 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए हैं, इन द करंट पीरियड वी हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन मटेरियल ए. ये 500 यूनिट पे जो खर्चा होना है वो पिछले पीरियड में ही हुआ था. मटेरियल का ये 2 मिनट रुको और क्लियर हो जाएगा व्हेन आई मेक अ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में और एक लॉजिक इसका मेरे पास, मैं एक्सप्लेन करूंगा. इस पीरियड में अगर वेटेड एवरेज होता तो मैं 100% लेता था. क्वेश्चन क्या पूछना है? इन द करंट पीरियड विच इज दिस मंथ, जून मंथ, राइट? इन द मंथ ऑफ जून, हाउ मच डिड यू इंकर ऑन मटेरियल ए फॉर दीज 500 यूनिट्स. ये 500 यूनिट इस महीने में नहीं आए जून, ये पिछले महीने में ही आए थे. पिछले महीने का क्लोजिंग WIP गई है और इस महीने का क्या बन गई है? ओपनिंग डैश. हाँ देखो, ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन उन्होंने दिया है 70%. कितना दिया बच्चों? 70% दिखा है क्या? 70% इज अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ व्हाट? अरे रिस्पॉन्स. 70% इज अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP. मतलब 30% काम जो होना था वो इस पीरियड में किया, लेकिन वो 30% ए पे नहीं करना था, बी पे करना था. 150 और लेबर ओवरहेड पे 50% आएगा काम. क्यों 50% आएगा रे? पिछले पीरियड में 50% किया हुआ था. देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन पिछले पीरियड का कितना है? 50 हो चुका है ना. तो इस पीरियड में 50 किया आपने. डिड यू गेट इट? न्यू यूनिट्स में से जो ट्रांसफर हो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%. क्यों? ये जो 18400 है इन पे कॉस्ट करंट पीरियड भी आया ना. इनका कॉस्ट मैचिंग होना चाहिए. करंट पीरियड का कॉस्ट और करंट पीरियड का आउटपुट. 18400 ये भी 100% आएगा. 18400 ये भी 100% आएगा. 18400. डू यू अंडरस्टैंड 18400? देन क्लोजिंग स्टॉक कितना है रे? 1800. 1800 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 80% फॉर मटेरियल. बट वो मटेरियल बी का 80% होगा. मटेरियल ए के लिए उसको 100% ही लेना है. ये 100% का मतलब क्या है? बेसिकली वी आर रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस एंड ट्रांसफरिंग इट टू subsequent process. Just wait for 2 minutes. Let the step 3 be complete. I'll give you one more logic or one more way of explanation. Have patience. 1800 आ गया. 1800 into 80% बोलो कितना था बच्चों? 14 और ये 60% करके 1080. तो टोटल लो. टेक अ टोटल ऑफ मटेरियल ए. कितना था? 20. यूजलेस फेलो. 20,000. These people can't take a total also. Next. कितना था? 20,000.
090, 19,000, 830. Am I right? 19,830. Are you clear with this? 19,830. क्या है 19,830? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. अब हमें क्या करना है? कॉस्ट निकालना है. हाउ? बच्चों वेट अ मिनट. ये जो यूनिट्स निकाले ना हमने, ये जो भी यूनिट्स मैंने निकाले हैं, व्हाट आर दिस? दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ जून. ये क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जून है. मतलब जून में हमने मटेरियल ए के 20,300 यूनिट्स पे खर्चा किया. मतलब क्या बेसिकली बच्चों, ये देखो यहां पर जो कॉस्ट आया ना, मटेरियल ए कितने का आ गया रे जून में? 1,65,400. 1,65,400 मटेरियल ए जून में आ गया ना आपके पास. वो 1,65,400 कितने यूनिट का था? 21,300. तो बेसिकली आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना था? टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 1,65,400 डिवाइड बाय 21,300. 7 पॉइंट. तो आपने पिछले प्रोसेस से 7.76 के हिसाब से रिसीव किया. अरे रिस्पॉन्स यार, 7.76 के हिसाब से रिसीव किया. बहुत ही बढ़िया. बट अब मैं कॉस्ट पे कुछ और लोड करूंगा. क्यों? टेक ऑन योर कैलकुलेटर. वही 1,65,400 आई विल डिवाइड ओवर 20,300. 8.14. क्यों रे कॉस्ट बढ़ गया? बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ 1,000. अरे कॉमन सेंस लगाओ. 21,300 तुमको ये पीरियड में आया, कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको. कितना आया? 21,300. 21,300 में से नॉर्मल लॉस कितना है? 1,000. ये देखो ना नॉर्मल लॉस, ये 1,000 का नॉर्मल लॉस है. 21,300 आपको पिछले प्रोसेस से इस महीने में मिला. मटेरियल ए मतलब क्या? मटेरियल दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस. एम आई राइट? प्रीवियस प्रोसेस से आपको कितना क्वांटिटी आया? 21,300. देखो इधर 21,300 मिल रहा है क्या? 21,300 आ गया. वही कॉस्ट. कितना कॉस्ट था? 1,65,400. लॉजिकली 21,300 पे स्प्रेड होना चाहिए, बट मैं स्प्रेड कितने पे करूंगा? 20,300. 1,000 कम क्वांटिटी पे मैं स्प्रेड करने वाला हूं. क्यों? नॉर्मल लॉस हो गया ना. वो जो 21,300 आया उसको प्रोसेसिंग में लॉस हो गया. जैसे मैंने जो एग्जांपल लेता रिफिल वाला, रिफिल को पैकेजिंग करते टाइम पे कट करना पड़ता है. वो कटिंग में थोड़ा सा लॉस होता है. अगर लॉस हो गया और वो नॉर्मल लॉस है तो हम क्या करेंगे? जितनी भी क्वांटिटी लॉस हो गई उसका कॉस्ट हम बाकी रिफिल्स पे स्प्रेड करेंगे. वैसे ही यहां पर प्रोसेस नंबर, ये जो भी चल रहा है, प्रोसेस नंबर 3 है ना. प्रोसेस 3 में कितने यूनिट्स आए बच्चों? 21,300. उस 21,300 में से 1,000 यूनिट स्वाहा हो गए. अल्लाह को प्यारे हो गए वो 1,000. कैसे? नॉर्मल लॉस. ठीक है यार, वेस्टेज हो गया. तो मैं क्या करेगा? वही कॉस्ट को 20,300 पे स्प्रेड करेगा. अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 21,300 आता था. 21,300 इस पीरियड का है, इस पीरियड का कॉस्ट है. ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको क्या समझना है? आपको समझना है दिस इज फॉर जून. In the month of June, for this process, this much is what we have produced. Are you clear? Are you clear? तो अब समझ में आया क्या? ये 0 क्यों लिया? ये ओपनिंग WIP 0 क्यों लिया? क्योंकि वो इस महीने में उसके ऊपर खर्चा किया ही नहीं हमने. ये जो 500 यूनिट्स है, इन 500 यूनिट्स के लिए जो मटेरियल ए का खर्चा है वो 1,65,400 में है ही नहीं. वो स्टेप 3 में और क्लियर होने वाला है तुमको. 2 मिनट रुको. स्टेप 3 में मैं मैजिक करने वाला है. दो आई एम नॉट अ मैजिशियन. सो स्टेप नंबर नेक्स्ट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट और इक्विवेलेंट यूनिट?
cost element, cost incurred less normal loss, scrap value, equivalent units, and what? Cost per EQ unit. Can I start? Or can I start? Cost element, मटेरियल ए. मटेरियल ए पे इस महीने में कितना खर्चा किया? आज तक नहीं बोला मैंने, टाइम्स नाउ चालू है. 1,65,400 का खर्चा किया, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस होगा. नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू. अब आप बोलेगे सर नॉर्मल लॉस मटेरियल ए में से क्यों? ऐसे ही लॉजिकली वो सब में से प्रोपोर्शनेटली माइनस होना चाहिए. टोटल नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी? 3 रुपया पर यूनिट पे बेचा ना हमने उसको, 3 रुपीज के हिसाब से बेच दिया हमने उसको, तो 3,000 आएगा ना रे. 1000 था ना. 1,62,400. 1,62,400 समझा क्या? ये मटेरियल पे हमने नेट खर्चा किया इस महीने में. इस महीने में कितने यूनिट्स के लिए? 20,300 यूनिट के लिए. तो आपका पर यूनिट खर्चा कितना था? 8 रुपया आएगा. 8 आ रहा है ना. हाँ, उसी एक कोर्स का खासियत है राउंड फिगर्स. This I liked too much in CA course. Whenever round figure comes, na, my confidence goes up. मटेरियल भी, अरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है यार, उसके लिए कोई एक्सेल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आता है. मटेरियल बी, बी पे हमने कितना खर्चा किया? एडिशनल मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया? इस पीरियड में एडिशनल मटेरियल हमने खर्चा किया 80,000. उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 20,090 है. इस महीने में 20,090. आप बोलेंगे सर कैसे? वो जो 21,300 आया था उसमें से कुछ है, कुछ ओपनिंग में से है, कुछ क्लोजिंग में है. डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है. ये कितना था? 4 रुपया आएगा. परफेक्ट, वेरी गुड. लेबर एंड ओवरहेड को मैं क्लब कर लेता हूं क्योंकि उन दोनों के डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है. दोनों का अमाउंट बोलो. 19,300,830 और 39,660 जो भी था, दोनों का अमाउंट ले लो. ओवरहेड प्लस वेजेस 59,004. क्वांटिटी है उसका 19,830. ऊपर से लिया 3 रुपया आएगा ये शायद. परफेक्ट 15 रुपया. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कुछ समझा क्या? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर व्हाट मंथ? फॉर द मंथ ऑफ जून. नेक्स्ट आइटम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. अब देखो स्टेप 3 जो है ना, इट्स बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेप्स. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. आर यू क्लियर? तो हमें क्या क्या वैल्यू करना है? अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू करना है, आउटपुट ट्रांसफर्ड को वैल्यू करना है, और क्लोजिंग WIP को वैल्यू करना है. तो मैं यहां पे लिखता हूं पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. आर यू क्लियर? यस नो? पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या बोलूंगा मैं? नंबर 1 आउटपुट ट्रांसफर्ड. अब आएगा मजा, मैजिक होने वाला है. फ्रॉम ओपनिंग WIP. बी रेडी फॉर मैजिक. आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट? ओपनिंग WIP. अब ये कितना यूनिट हमने ट्रांसफर किया ओपनिंग में से? अरे रिस्पॉन्स, ओपनिंग में से मैंने ट्रांसफर किए कितने? 500. जो 500 मैंने ट्रांसफर किए उस पर क्या क्या कॉस्ट आएगा? रिमेंबर समथिंग, आई रिसीव मटेरियल ए. I receive material A. I had received material A in the month of May. मई में मैंने
इतना ही काम किया था। बाद में समझ में आया कि वो डिफेक्टिव था। मई में हमने कुछ इतना ही काम किया था। ठीक है, ये मई का पोजीशन है। मई के पोजीशन का इस सम में खर्चा है 7,200। जून में मैंने बाकी का मटेरियल लगाया, मतलब मटेरियल बी लगाया। जून में मैंने मटेरियल बी लगाया और वो प्रोसेस नंबर नेक्स्ट को ट्रांसफर किया। 7,200 जो है वो 7,200 में मटेरियल ए 100% है, मटेरियल बी 70% है, लेबर ओवरहेड 50% है। बाकी के परसेंटेजेस इस महीने में आएंगे, लिखना मना है। देखिए अभी मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कॉस्ट आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, उसको मैं बोल रहा हूं। ये मैंने जून है ना रे, क्वेश्चन में बोला हुआ जून। ऑब्जर्व, डोंट राइट, यूजलेस। कॉस्ट इनकट इन मे 7,200। ऑब्जर्व, मैजिक होने वाला है, 2 मिनट। कॉस्ट इनकर्ड इन जून। लिसन टू दिस, मैंने कल आपको बोला था स्टेप 3 इज अ मिलन ऑफ स्टेप 1 एंड 2। अब मैं क्या करेगा, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ना, स्टेप 1 में जाने का, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ढूंढने का, कितना है 500 है ना, वो 500 का पूरा लाइन देखने का। वो 500 को करंट पीरियड में मटेरियल में डैश डैश है, मटेरियल बी को 150 है और लेबर ओवरहेड को कितना है 250। तो मैं क्या बोलेगा इधर मालूम है, कॉस्ट इंकर्ड इन जून, मटेरियल बी कितना था 150 था ना रे, 150 मैंने उधर से उठाया, लेबर ओवरहेड्स 250 उठाया, स्टेप 1 से उठाया ना, स्टेप 2 से मैं 4 और 3 उठाएगा। पर यूनिट कॉस्ट 150 और 250 ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है। अरे मैजिक 600, 750, 13,000, टोटल ले लो, 13,500 नहीं टोटल, लेकिन मेरे टोटल चाहिए 7,200 प्लस 600 प्लस 750, 83 और मुश्किल है, मुझे कल कैलकुलेटर भी लेके आना पड़ेगा। 85 मैजिक इज हियर। ये जो है इसमें 100% मटेरियल ए है, इसमें 70% मटेरियल बी है। क्यों 70%? देखो ना उधर क्वेश्चन में देखो, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% दिया है, इसमें 70% मटेरियल बी है, इसमें 50% लेबर एंड ओवरहेड्स है ना। अब ये 600 जो है इसमें क्या है, बाकी का 30% मटेरियल बी है ना। और ये जो है इसमें 50% लेबर ओवरहेड है। ये जो 8,550 है उसमें 100% मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है। बेसिकली जो भी आउटपुट ट्रांसफर होता है सब्सिक्वेंट प्रोसेस को, उसको 100% कॉस्ट लग के जाना चाहिए, 100% ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल द एंड ऑफ माय प्रोसेस। मेरा प्रोसेस नंबर क्या है 3 है, प्रोसेस 3 के एंड तक जो भी कॉस्ट आता है क्यूमुलेटिव बेसिस पे वो लगना चाहिए। 8,550 इज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस 500 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस नंबर 3। अब 8,550 में कुछ प्रोसेस 2 का कॉस्ट है, कुछ प्रोसेस 3 में एडेड कॉस्ट है, but cumulative cost by the end of the process number 3 is 8,550 in respect of those 500 units. Or yes, no? Had I followed weighted average method बच्चों, then in that case
ये जो 500 डैश डैश है ना, ये डैश डैश नहीं होता था, 500 का क्या होता था, 100% होता था. आर यू क्लियर विद दिस? आई कांट हियर. टेक इट डाउन वेरी क्विकली. यू गॉट 1.5 minute. Understood? बेटा मैंने अब तक 5 अलग अलग कार की फैक्ट्रीज पूरी अंदर से देखी हुई. मैंने पूरा एक HMT का ट्रैक्टर खुद मैंने और मेरे पापा ने खोल के वापस रीअसेंबल किया हुआ है. और मैं 2 व्हीलर आज भी रीअसेंबल करके दिखा सकता हूं तेरे को. मैन्युफैक्चरिंग बहुत किया. तो मेरे को टीवी का शो नहीं देखने. अच्छा तूने देखा है, ऐसा बोल रहा तू. टाटा मोटर्स में 3 साल गुजारा है. और टाटा मोटर्स के जो ऑटो कंपोनेंट के 14 अलग अलग कंपनीज है उसमें 4 साल गुजारे. टैको करके प्रभात रोड पे लॉ कॉलेज पे टाटा ऑटो कंपोनेंट्स करके 4 साल गुजारे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में. कॉस्टिंग बहुत ज्यादा सब, मतलब कॉस्टिंग एंड FM आर द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन कॉस्टिंग. FM एंड आई विल से टैक्सेशन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेवल ए पे सिलेबस में. अकाउंट उतना नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारा पोस्टमार्टम. अकाउंट क्या है, बिजनेस के लिए ज्यादा हेल्प नहीं रे. चला ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद तुम ज्यादा एंट्री करते हो. इधर बिजनेस है, पैसा बोलो, अकाउंट में चला पैसा जाता है. अकाउंटिंग में क्या है, टू मच ऑफ फिक्शन है रे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे मेरे को बिजनेस के लिए कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट. बट वो क्या है, इंस्टीट्यूट है इसलिए बोलना पड़ता है हमें. दो आई टीच अकाउंट्स, जो बिजनेस का पर्सपेक्टिव जो फैक्ट है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज गोइंग टू गेट पेड मोर एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटेंट. आप सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करोगे, आपकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं. आप मेरे लिए प्रोडक्ट का अच्छे से कॉस्टिंग करके दिखा दो, एनालिसिस करके बोल दो इधर तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये है, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. तो आपका फोकस अकाउंटिंग पे रहना चाहिए पास होने के लिए, ऑडिट करने के लिए. अकाउंटिंग पे फोकस ऐसे नहीं बोल रहा हूं रहना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा दिमाग कॉस्टिंग और FM में लगाना चाहिए. कॉस्टिंग, FM, टैक्स, ये आपको पैसा ला के देंगे. ऑडिट, अकाउंट्स, ये पोस्टमार्टम है सब कुछ. और इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छा है रियल लाइफ के लिए, बट वो सिलेबस के लिए बहुत ही 3rd क्लास लेवल पे रखा है हमारे. तो इसलिए वो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं प्रैक्टिकल, वो तो रट्टे थे यार. मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलने डेवलप करने बोले तो आना चाहिए, छोड़ दो, दर्द वाली कहानी है. आउटपुट ट्रांसफर्ड, from what? New units. Output transferred from what? New units. कितना आउटपुट ट्रांसफर किया रे हमने? 18,400. इसके लिए कुछ करने का नहीं, डायरेक्ट एक ही आइटम है, 18,400 इंटू 15. उस पर पूरा का पूरा कॉस्ट जून में ही खर्चा हुआ है. बोला आउटर कॉलम 2,76,000 ना रे. नंबर 3, क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन. सीक्वेंस कुछ रहता नहीं है ऐसे. क्लोजिंग WIP कैसे वैल्यूएशन करोगे? उसमें मटेरियल A पूरा का पूरा रहेगा. कितना दे क्वांटिटी क्लोजिंग WIP का? 1800 इंटू 8 रुपया. मटेरियल B क्लोजिंग WIP में इक्विवेलेंट कितना है? 1440. देखो स्टेप 1 देखने का, 1 और 2 का मिलन है 1440 इंटू 4 रुपया था ना. और लेबर एंड ओवरहेड्स कितना है? लेबर एंड ओवरहेड्स 1080 इंटू व्हाट? 3. इनर कॉलम 1800 इंटू 8, 1440 इंटू 4, 57.
1080 इंटू 3 30 3 आउटर कॉलम 20,000 4 एबनॉर्मल लॉस वैल्यू करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस के लिए भी मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट सब जगह सेम ही है ना, तो 100 यूनिट्स है ना रे, डायरेक्ट इंटू 15 कर सकता हूं मैं। अगर आप ये टोटल लोगे और यहां का टोटल लोगे मैच हो जाएगा, लेकिन हर सब में मैच नहीं, मैच नहीं होगा, 7,200 का फर्क आएगा। क्यों? ये जो कॉस्ट इंकर्ड है ना, दिस इज कॉस्ट इंकर्ड इन जून, ले लो टोटल, ये कैलकुलेटर 1,62,400 स्टेप 2 का, प्लस 80,360 प्लस 59,490 3 लाख, एंड अब इसका टोटल लो 3,09,000, डिफरेंस निकालो 7,200 का। क्यों? उसमें 7,200 ओपनिंग वाला इंक्लूडेड नहीं था, इसमें 7,200 इंक्लूडेड है। अरे समझता है क्या? चलो अभी प्रोसेस अकाउंट बनाओ। प्रोसेस अकाउंट में क्या है? ये टाइप्स है। व्हाट इज देयर इन द प्रोसेस अकाउंट? जो भी कॉस्ट इंकर्ड है वो डेबिट पे लिखो, आउटपुट ट्रांसफर्ड है वो क्रेडिट पे लिखो। कर सकते हो क्या खुद? चलिए प्रोसेस अकाउंट खुद बनाइए। मेक प्रोसेस अकाउंट ऑन योर ओन। You'll have costs on debit. You have output transferred, abnormal loss, closing WIP on credit. Got it? Quick.
Are you done? I assume you're done. It should tally. Total should be exactly 3 lakh 9. 3 lakh 9 नहीं, थोड़ा ज़्यादा आएगा. 3 lakh 12,000 आएगा. Normal loss credit होगा ना? See, you have 2 opening WIP as item. You have 2 process number 2. You have 2 labor. You have 2 overheads. You have buy normal loss. You have buy abnormal loss. You have buy process number 4. You have buy closing WIP. It must tally. There is no alternative to it. Tally हो गया बच्चों? Now, if you had followed weighted average cost method, what would have happened? Breakup of opening cost into the element material A, material B and labor overhead would have been given to you, and accordingly आपका जो equivalent production होता था step 1 में, step 1 में आपका question क्या होता था? इस महीने में कितना किया? नहीं, अब तक कितना काम हुआ है, अब तक कितना काम हुआ, वो question था आपका. You would have got cumulative equivalent production and you would have got a cumulative cost incurred and in the step number 2. I hope you got it. I proceed ahead with the last type of sums in this chapter. Last type of sums in this chapter are about inter-process profit. Understand the concept of inter-process profit. Simple concept. So far, we kept on transferring goods from a process to the next process at the cost of that process. However, in order to do the performance evaluation, you may be interested in transferring the cost from a process to a subsequent process by adding relevant profit amount to it. कुछ समझा मैंने क्या बोला? What did I say? So far, process 1 was transferring output to process 2 at the cost of the process 1. Process 2 क्या करता था? Process 1 से जो cost आया plus खुद ने जो incur किया वो cost लेके process 3 को भेजता था. Like these transfers were made at a cost to that particular department. However, in order to do the performance evaluation, like for example, you have to give the bonus oblique incentive to the workers of the particular process or particular department based upon profit made by them. So you may do the transfer from one process to the another process at cost plus some profit margin. Or you may do it with reference to market price of the semi-finished goods at that stage if they are marketable at that particular point of time. Basically, recollect your discussion in Group 1 accounts, departmental accounts chapter. Transfers were made from one department to another department at some inflated price, and then you were creating a stock reserve. Why did you do the transfer at an inflated price? The logic of transfer at an inflated price was very simple. Logic of transfer at an inflated price was quite simple. What was the logic? Logic was the profit of that particular department should be credited to that department. If I had to credit the profit of that department to that department, I should do it, right? तो वो करने के लिए हमने क्या किया था? ट्रांसफर किया था at inflated cost. वही चीज हमें यहां पर करनी है. Inter process profit means transfer from one process will be made to the subsequent process at some inflated cost. मतलब अगर आपका कॉस्ट 10,000 है, 10,000 में 20% ऐड करो. It could be either adding the some margin to it, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, or it could be at the market price of the goods at that semi-finished stage. However, in every case, goods may not be marketable at a semi-finished stage. Hence, it is more appropriate to take the cost of the process plus add some percentage.
Now percentage can be expressed as a cost, percentage of cost, or percentage can be percentage of transfer price. कुछ समझा क्या? You can express it as a percentage of cost or you can express it as a percentage of transfer price. Choice is up to you. So when you do the transfer from a process to another process, transfers are going to be at certain amount. That amount can be either percentage of cost or percentage of transfer price. So how am I going to present this inter-process profit? Quite simple. Observe what I'm doing. I'm going to make a statement. Process account में बनाने वाला हूँ. Same process account which you are making right now, same process account I'm going to make, but it is going to have some additional columns to it. What are the additional columns? Particulars, cost rupees, profit rupees, total. मतलब basically CPT करना है आपको. Though you are in an inter, you have to do CPT. कुछ समझा क्या? Cost, profit, total. बच्चों, observe the words carefully. This cost is going to be cost to the organization. Am I right? And this is your inter-process profit that is included there. कुछ समझा? So हम क्या करेंगे? Process number 1. This is account of the process number 1, let's say. Debit side will be costs incurred in the process number 1. To those costs, we will add some margin and we will transfer the goods to process number 2 by writing by process 2. But while transferring the goods to process number 2, you will have the profit added. You will have profit added there. Cost to the process 2 will be cost to the process 1 plus profit of process 1. Am I right? But ये जो cost column है, ये cost column क्या दिखाएगा? Organization की cost. Please remember there is a huge difference between cost to the organization and a cost to the process 2 and subsequent processes. In process 1, cost to organization and cost to process both are same. But in the subsequent process, cost to the process and cost to the organization are different. Why? In process 3, when I say cost to organization, it does not include profit of process 1, process 2. But if I say cost to process 3 is cost to the organization plus profit of process 1 and profit of process 2. So cost to any particular process is organization cost plus the profit of predecessor processes. Do you understand? हमें हर एक प्रोसेस का प्रॉफिट हमें इससे मिलेगा. बेसिकली क्या होने वाला मालूम है? टोटल जो प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट के हम टुकड़े करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? टुकड़े करने वाले. However, the interesting item is there is a stock reserve here also which you have not learned. जो डिपार्टमेंट अकाउंट में आपने स्टॉक रिजर्व किया ना वो कॉस्टिंग में भी है. आपने लर्न किया एक्चुअली विदाउट नोइंग दैट इट इज अ स्टॉक रिजर्व. हाउ? Whenever you value the stock of the process 2 or process 3 or process 4 or any process after process 2 or process 2 process 2 or any process thereafter, हर एक प्रोसेस के स्टॉक में पिछले प्रोसेस का प्रॉफिट, ऑल पिछले प्रोसेसेस का प्रॉफिट इंक्लूडेड है. अगर आपको याद होगा डिपार्टमेंट अकाउंट में कुछ सम्स ऐसे थे. डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफर किया, लेकिन कुछ गंदे वाले सम अगर आपको याद हो गए, ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, तो सी का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें ए का प्रॉफिट भी था प्लस बी का भी प्रॉफिट था. कुछ याद होगा तो वो जनरल पी एंड एल में हमने रिवर्स किया था उसको, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बेसिकली ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या है? डिपार्टमेंट अकाउंट है. तो whenever you are going to study department account, please study inter process profit, और whenever you are going to study inter process profit, please study department account simultaneously. तो आपको थोड़ा लिंक भी लगेगा. कंफ्यूजन होता है तो छोड़ दो. अगर ब्रेन के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है दोनों चीजों को साथ में हैंडल करने की, ये अलग पढ़ो वो अलग पढ़ो, जबकि ये दोनों अलग कंसेप्ट्स है ही नहीं. प्रोसेस इज डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट अकाउंट में सिर्फ इट वाज नॉट अ सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट लाइक
डिपार्टमेंट ए से गुड्स डिपार्टमेंट बी में जाएंगे, फिर बी से सी में जाएंगे। हाँ ना, यहां पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी, बी टू सी, सी टू डी, सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। उधर हम डिपार्टमेंट बोलते थे अकाउंट्स में, इधर क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस बोल रहे हैं। कुछ समझा क्या? आपको केयरफुली क्या पढ़ना है, केयरफुली यू हैव टू रीड ट्रांसफर्स आर एट कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज और कॉस्ट or at a market price or percentage of profit is expressed as a percentage of transfer price. I repeat, profit can be expressed as a percentage of cost. Profit can be expressed as a percentage of transfer price. Are you clear? When I say cost, it is not cost of goods produced. It is the cost of goods transferred. So प्रोसेस वन में जो गुड्स प्रोड्यूस किए उनकी कॉस्ट 50,000 हो सकती है। 50,000 पे प्रॉफिट ऐड मत करो। 50,000 के गुड्स तुमने प्रोड्यूस किए, लेकिन उसमें से कुछ 10,000 के गुड्स अभी भी आपके पास स्टॉक में हो सकते हैं ना, वो जो स्टॉक में है उसको पहले माइनस करो एंड देन बैलेंस गुड्स को आप क्या करो, प्रॉफिट ऐड करो। सो वी हैव टू बेसिकली टेक कॉस्ट ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड। वी आर नॉट सपोज टू टेक अ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना। और एक चीज आपको बहुत केयरफुली लर्न करनी है, इन्वेंट्री जो वैल्यू होगा वो कौन से अमाउंट पे वैल्यू होगा। लॉजिकली इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। हाउएवर इफ एनीवन इज वैल्यूइंग द inventory at prime cost, some questions are there in this type which I have seen in the past exams, which are in my opinion a bullshit question. Let institute listen. You cannot value inventory at prime cost. You have to value inventory after including factory oblique production overhead. कभी कभी हम इन्वेंट्री क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे विदाउट फैक्ट्री ओवरहेड, इन्वेंट्री माइनस करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे और वो ऐड करने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे। वो गलत है कॉन्सेप्चुअली। क्यों? फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट अ पीरियड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स while doing the valuation of inventory: product cost and what? Period cost. The period cost should be excluded from valuation of inventory, but product cost should be included while doing valuation of inventory. Are you clear? So let me explain this through a sum. Sum number blah blah. देखिए, टाइप नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चन है। यहां पर एग्जाम का क्वेश्चन है, नवंबर 2008 एग्जाम, 12 मार्क्स। ऑब्जर्व, a product passes through 3 processes X, Y and Z. Output of X and Y is transferred to the next process at cost plus 20%. क्या लिखा है बच्चों? At cost plus 20%। तो क्या करेंगे हम? कॉस्ट में 20% ऐड करेंगे। And the output of process that is transferred to finished stock at a profit of 25% on transfer price. Oh, good. X to Y is profit of 20% on cost, but Y to Z it is 25% on transfer price. Are both statements same? Are yes, no? Yes, na? No, no. 25% on transfer price is 1/4 of transfer price. 1/4 of transfer price मतलब 1/3 of cost. Process X, process Y, process Z. Finished stock. Opening stock 15,000, 27,000, 40,000, total 45,000. Material, wages, manufacturing overheads, closing stock. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कुछ ओपनिंग स्टॉक है हर एक प्रोसेस का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस एक्स, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, नहीं लिखा है। क्यों रे? स्टॉक प्रोसेस वन के पीछे कोई नहीं है,
अगर प्रोसेस 1 के पीछे कोई नहीं तो उसमें स्टॉक इंक्लूडेड नहीं होगा। प्रोसेस 5 4000, प्रोसेस Z 10,000, समझा क्या? स्टॉक इन द प्रोसेस इज वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट टू दैट प्रोसेस। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर है। दिस लाइन इज अ कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर? प्राइम कॉस्ट पे स्टॉक वैल्यू कर रहा है आप, गलत बात है। यू शुड बी वैल्यूइंग स्टॉक एट व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट, एटलीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। Stock of the finished stock is valued at a price at which it is received from process number Z. ठीक है, that is last process. Sales of finished stock during the period was 14 lakh rupees. You are required to prepare process account and finished stock account showing the profit element at each stage and show profit and loss account and show relevant items in the balance sheet. बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको पूछी हुई है. Let me explain all the things in form of what? A solution. चलो, let us start. Sum number 15. Sum number 15 is on left hand side. Solution is on right hand side. Let us begin. Instead of process 1, I'll say process X. Can I start? Two opening stock. कितना है ओपनिंग स्टॉक? 15,000 प्रोसेस एक्स का. उसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्या? टोटल आ गया 15,000. देयर इज नो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दिस. टू मटेरियल. टू मटेरियल कितना है प्रोसेस एक्स में इंकर किया? 80,000. ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दिस. रिकॉर्ड करेंगे हम. ये बहुत सिंपल टाइप है. डोंट एक्सपेक्ट सम ऑन दिस इन द एग्जाम. आ भी सकता है. एक 25 डैश प्रॉफिट के लिए डैश होगा ना. एक 25. अब यहां पर ब्रेक लेना पड़ेगा आपको. क्यों? प्राइम कॉस्ट आ गया ना. दिस इज प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. आई रिपीट, दिस इज व्हाट? प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. वो जो क्लोजिंग स्टॉक दिया ना नीचे आपको 20,000, ये जो 20,000 दिया ना आपको, ये 20,000 किस पे है? प्राइम कॉस्ट पे. एम आई राइट? तो मैं लेस क्या करेगा? क्लोजिंग स्टॉक. कितना रे? 20,000. मैंने सब टोटल नहीं लिया. अगर किसी को सब टोटल लेना है तो ले सकता हूं. क्लोजिंग स्टॉक आ गया. 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड कितने रे? 96,000. उसको हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं. इन्वेंटरी वैल्यूएशन में नहीं आएगा वो. तो अब ये जो टोटल आएगा ना, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड. क्या बोला मैंने? COGT. कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड. COGS नहीं बोलने का, क्योंकि यू डोंट सेल इट टू द नेक्स्ट प्रोसेस. यू transfer to the next process. Do you understand? Tell me, how much is it? 2 lakh? How much is the profit that you add? 20% by process Y. By process Y. Cost of the goods transferred is 296. प्रॉफिट ऐड करो.
सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जाने के बाद चेंज हो रहा है प्रोसेस. प्रॉफिट बोलो कितना है? 59,000 टोटल. $3,55,200 is a total. Now डेबिट साइड क्या आएगा? टू कॉस्टिंग P&L टैली करने के लिए. टू कॉस्टिंग P&L डैश इन द कॉस्ट कॉलम, 59,200 in the profit column, so that I can tally process number 1. 296 59 200 355 200. Same thing on debit side. $296 59 200 and what? 355 200. समझा क्या? Total process X is over. I will now say process Y account. Do you understand process Y account? To ओपनिंग WIP है ना उसका? हाँ, अब आएगा मजा. सच में मजा यहां से शुरू होगा. टू ओपनिंग WIP. हाउ मच इज द WIP ऑफ प्रोसेस Y? Process Y has a WIP of 27,000, but in that 27,000, 4,000 is the opening stock.